नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। We're getting a lot of news from all over the place, which is absolutely fantastic. By the way, those things are the headers that you have put on are from yesterday. Would you be kind enough, please, to just change them? जो हेडर आपने लगाए हैं वो कल के हैं, हटा दीजिए प्लीज। थैंक यू। Pradeep ji, major news coming in. First, of course, the news is that Ritu Gavde is going to be is going to be the Mumbai mayor. But the other news which is coming in is very, very interesting, which is that the Pakistani Cricket Board is having a rethink on playing India in the T20 World Cup. अब क्या है कि ICC की तरफ से वार्निंग आई है कि भैया तुम्हें बैन कर दिया जाएगा, तुम्हारा जो PSL है उसको भी बैन कर देंगे, कोई इंटरनेशनल प्लेयर उसमें खेलेगा नहीं, और आपके जितने बायलैटरल सीरीज हैं they will not have ICC sanction. So any country playing Pakistan will also risk being banned by the International Cricket Council. Exactly. और उसमें क्या होने वाला है, जैसे अभी वसीम अकरम ने बोला, शोएब अख्तर ने बोला, बाकी सब ने बोला और रमीज राजा ने बोला कि आपका जो लॉस होने वाला है वो $300 मिलियन से ज़्यादा होने वाला है साल का। तो आप क्या करने वाले हैं समझ में नहीं आ रहा किसी को, मतलब आपकी हालत ख़राब होने वाली है। वैसे ही बोर्ड की हालत ख़राब है अभी पाकिस्तान के। एक बार अगर बैन लग गया और 3 या 4 साल तक चला तो आप क्या करेंगे फिर? So it is going to be very, very difficult, very frankly speaking, for Pakistan. As it is, Pakistan is no longer the team that they were used to be, and international cricket will not have a big remorse about not having Pakistan. Sir, the only it's just another ordinary team as on today. Another ordinary team, and the only asset that Pakistan has is the rivalry between India and Pakistan. That's it. Yes. क्योंकि लोगों को बड़ा मजा आता है हिंदुस्तान को पाकिस्तान को हराते हुए देख के। Yes, yes. तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के मैच की वैल्यू है। Otherwise, Pakistan per se has no value. They only have value that they get beaten by India every time. That's it. मतलब पिछले जो 12 मैच हुए हैं 12 के 12 हारे हैं लोग। 14 मैच अगर निकालें तो उसमें से 2 ये लोग जीते हैं। मतलब exactly. It's like terrible. And we must congratulate Vaibhav Suryavanshi and the entire under-19 team for the stupendous performance, winning the under-19 World Cup for the 6th time. 6ठी बार जीते हैं और amazing performance from Vaibhav Suryavanshi. He's just 14.5 years old. And he scored 175 runs. 175 runs in just, I think, 70 balls or 60 balls. Exactly. Absolutely fantastic. Really and truly. I mean, what a talent. Wow. Can you imagine what this guy will be like in the next 5 years? Oof. It boggles the mind. He continues like that. I mean, yes. He needs to continue. The temperament has to be there. Yeah. And he's continuously playing very well. Because it's not a few seasons and then he's out. International cricket has seen many guys who are great and suddenly they're out of form and out of scene totally. Yes, absolutely. But we hope he's not like that. He will improve and be a great player. I don't think he'll be like that also because Pradeep ji, the fact is he's got great mentors. You got a mentor like VVS Lakshman with him, you got Rahul Dravid who's nurturing him and pulling him forward and so on. And they haven't, and I think the BCCI has done a very wise thing. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि वैभव सूर्यवंशी को एकदम सीनियर टीम में नहीं डाला है। उनका कि भैया अभी आप अंडर-19, अंडर-21 के लिए आगे देखेंगे। लेट्स सी, व्हिच इज आई थिंक अ ग्रेट थिंग। बट मेजर न्यूज एज फार एज मुंबई इज कंसर्न्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 इयर्स, 25 साल में सबसे पहली बार प्रदीप जी, 25 साल में सबसे पहली बार शिवसेना का मेयर नहीं होगा, शिवसेना का महापौर नहीं होगा। It's quite bad. I don't know what Uddhav was saying, but first time, as you said, in 25 years, such kind of and BJP is really taken over from being the number 4 party. It has come to being number 1 party now. और सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप जी? This is the first ever mayor of Mumbai from the BJP. First ever mayor from the BJP, and to rub salt into the wounds of Uddhav Sena, UBT, you got Eknath Shinde as deputy mayor. एकनाथ शिंदे साहब के डिप्टी में। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और बाकी जो 65 जीत कर गए हैं, जिसका कहना है कि हम विचारों को लेके जा रहे हैं आगे, और उद्धव जी के जो 65 लेकर के आए हैं उद्धव जी, उनमें से कोई 50 तैयार हैं अभी भी एकनाथ शिंदे साहब के पास और बीजेपी के पास जाने के लिए। एनीवे, लेट्स होप, उम्मीद करते हैं कि उद्धव जी जो हैं वो सड़क पे वापस आएंगे और अपनी शाखाओं को एक बार फिर पुनर्जीवित करेंगे। शाखा प्रमुख जितने हैं उनको सबको लेकर के जाएंगे। यहाँ पर कोई उद्धव ठाकरे जी का कोई खास है यहाँ पे? जब हम लोग शिवसेना, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब यानी
ऋतु तावड़े की बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उद्धव ठाकरे जी को दिखा दिया. Anyway, thank you so much for showing that. Let's go straight across to our guests. We got a wonderful panel of guests. Let's go to them. Can we go to our guests, please? Yes. There we are. Dr. Aviral Malik. Namaskar, sir. Aviral Malik साहब, नमस्कार. जी नमस्कार. Fantastic. संजय द्विवेदी जी, नमस्कार. जय श्री राम. जय श्री राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. तो अविरल मलिक साहब, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई मुंबई शहर में, एंड ऑफ कोर्स राकेश प्रजापति साहब. Yes. प्रजापति साहब नमस्कार. प्रोफेसर साहब नमस्कार. हाउ आर यू? नमस्कार सर, मैं ठीक. Yes. आई होप योर सन इज ऑल राइट नाउ. लास्ट टाइम वी हर्ड द यंग मैन हैड हर्ट हिमसेल्फ. मैं उम्मीद करता हूं कि अब उनकी तबीयत ठीक होगी. तो और डॉक्टर मलिक, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, बधाई. सबसे पहली बार बीएमसी के बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास में सबसे पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनने वाली है. महापौर जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी. उनका नाम है ऋतु तावड़े, और वो कई बार जीत चुकी हैं. पहले कांग्रेस में हुआ करती थी. 2012 में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तब से जीत रही हैं. और कहां से जीती हैं? टोटली गुजराती कॉन्स्टिट्यूंसी है सर. वो घाटकोपर जहां से वो जीत के आती हैं, देयर इज अ मेजॉरिटी गुजराती कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये महाराष्ट्र है, वो जीत के आई हैं. और दूसरी चीज क्या है कि जैसे प्रदीप जी ने अभी भी कहा कि डिप्टी मेयर जो है वो एकनाथ शिंदे साहब के, तो मतलब उद्धव जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वापस लाने के लिए. और तीसरी बात, जो बड़ी चीज है अभी उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है सर, वो शंकराचार्य जी और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या चल रहा है सर? समझाएंगे अभी क्यों इतने नाराज हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी योगी जी से? सर क्या हुआ है, जरा बताइए ना सर इस पे प्लीज, डॉक्टर मलिक जी. देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मैं मुंबई से प्रारंभ करता हूं. जहां तक मुंबई का विषय, तो मुंबई की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभूतपूर्व तरीके से विश्वास और भरोसा जताने का अभूतपूर्व कार्य किया. और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए भगवान शंकराचार्य जी की, तो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक इस पे एनआई और आईएनएस मीडिया एजेंसीज के माध्यम से स्पष्ट बयान रखा गया था, पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्लियर कट तरीके से उन्होंने स्पष्ट रूप से इस विषय पे कहा था. भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कि इस विषय का समापन तत्काल हो, उसे एक तरीके से करबद्ध निवेदन उनके चरणों में किया था. और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भगवान शंकराचार्य जी का, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए सम्मानित थे, सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे, आदर्श थे, मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे, हैं और रहेंगे. इसमें किसी रूप में कोई दुराय नहीं है. और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से भगवान शंकराचार्य जी का, तो उस विषय पे केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी दोषी अधिकारी होंगे जिनके द्वारा भी इस प्रकार की हरकत को अंजाम दिया गया या अभद्रता करने का प्रयास किया गया, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, कोई हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना छोटा अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो पुलिस प्रशासन का, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई लिस्ट के आधार पर की जाएगी, जिनके भी नाम सामने आएंगे. और उसके साथ साथ जहां तक विषय केशव प्रसाद मौर्य जी की अगर बात करी जाए, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, केंद्र सरकार का स्टैंड ऑफिशियली रखा गया, क्योंकि वो प्रयागराज क्षेत्र के हैं, वहां के लोकल हैं. और उसके साथ साथ अगर केशव जी की बात कर ली जाए, तो संतों के बहुत करीब हैं, संतों का आशीर्वाद हमेशा से लेते रहे हैं. और साथ ही साथ अगर केशव जी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री थे, विधायक और सांसद भी वहां से रहे हैं. तो निश्चित रूप से जहां तक विषय संतों का, संतों के प्रति उनके लगाव का, वो बिल्कुल सर्वविदित है. और एक उदाहरण भी अगर मैं दे दूं, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज हुआ करते थे. उनके देहांत से 2 दिन पहले ही उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया था, और वो आखिरी नेता थे केशव प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने नरेंद्र गिरी जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण किया था. वो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर इलाहाबाद के महंत भी थे. आज वो हमारे बीच नहीं है. लेकिन जहां तक विषय इस अगर शंकराचार्य जी वाले विषय की अगर बात करी जाए, मैं समझता हूँ विपक्ष को इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस मुद्दे में पॉलिटिक्स नहीं ढूंढनी चाहिए. 40 दिन का नोटिस दिया है डॉक्टर अविरल मलिक जी. 40 डेज नोटिस सरकार, यूपी सरकार को, कि गौ माता को राज्य माता का घोषित किया जाए. बैन ऑन बीफ, और यूपी से सबसे ज्यादा बीफ बैन एक्सपोर्ट हो रहा है. उस विषय में ये 2-3 विषय जो शंकराचार्य ने दिया है,
40 डेज से नोटिस दिया है और यह भी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी एक्शन नहीं लेते तो शंकराचार्य डिसाइड करेंगे कि योगी जी हिंदू है कि नहीं है, तो क्या हिंदुत्व से बाहर निकाल देंगे योगी जी को? डॉक्टर मलिक जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भगवान शंकराचार्य जी का, तो अगर बात कर जाए स्पेशली मीट की, नॉनवेज की और नॉनवेज प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट होने की, मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट है। नॉनवेज प्रोडक्ट्स, मीट विभिन्न प्रकार का एक्सपोर्ट होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक विषय गोरक्षा का, गौसेवा का, वो हमारे लिए एक तरीके से प्रायोरिटी में शामिल है। और निश्चित रूप से गौसेवा, गौरक्षा हमारी प्राथमिकता में कल भी था, आज भी है और इन फ्यूचर भी, भविष्य में भी डंके की चोट पर रहेगा। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन, कोई दो राय नहीं है, कोई फेंट बट नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से गौरक्षा का, गौसेवा का और गौशालाओं के निर्माण का, तो पूरे उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से निरंतर डंके की चोट पे हो रहा है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। पहले तो विपक्ष कहता था कि हम खाली हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के आरोप रहा करते थे हमारे ऊपर कि हम गाय की बात करते हैं, केवल हम गाय, गोबर, गौरक्षा, गौसेवा और गौशाला से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अखिलेश जी ने भी इस विषय को एक्सेप्ट किया था। अखिलेश जी ने भी कहा था कि गोबर और इत्र की जब बात आई थी, वो तो उस दौरान उनका बयान बहुत चर्चा में आया था। तो विपक्ष तो यही कहता था कि हम गौसेवा, गौरक्षा कर रहे हैं। अब जहां तक विषय एक तरीके से शंकराचार्य जी का, तो निश्चित रूप से उनकी जो दिशा है, उनके द्वारा जो दी जा रही है राज्य माता गौरक्षा की, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चलती रही है और चलती रहेगी। क्या घोषणा होगा राज्य माता हाउसेस बंद करवाने का काम, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई थी और इलीगल स्लॉटर हाउसेस सारे बैन हुए थे। नहीं, are you going to declare गौ माता as राज्य माता? डॉक्टर मलिक साहब बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जो भी आवश्यक होगा वो कानूनी पहलू के आधार पर किया जाएगा, लेकिन वो हमारी राष्ट्रमाता थी, है, रहेंगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। वो डिक्लेयर कर देना केवल एक डिक्लेरेशन की एक अलग बात है, कागजी कार्रवाई की एक अलग बात है। कागजी कार्रवाई का हम उतना विश्वास नहीं रखते, वास्तविकता में और धरातल में विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। हम उन लोगों में से हैं कि अगर कोई घर की पहली रोटी होती है तो वो गौ माता को जाती है। तो ये हमारे संस्कार है और सभी हिंदुओं के संस्कार है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो मैं समझता हूँ इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स करना या पॉलिटिसाइज करना इस मुद्दे को। लेकिन सर डॉक्टर मलिक, ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने काल नेमी बोला था ना, काल नेमी, जरा ध्यान से रहें। काल नेमी जो है वो शंकराचार्य बन करके कभी कभी आ जाते हैं, साधु बन के कभी कभी आ जाते हैं। और साथ में गवर्नमेंट ने एक नोटिस भी पेश कर दिया था ज्योतिर्मठ पे कि ये असली शंकराचार्य नहीं है। तो क्या वो नोटिस विड्रॉ हो गया है? क्या नया नोटिस इश्यू हो गया है एक्नॉलेजिंग अभी मुक्तेश्वरानंद जी एज अ शंकराचार्य? क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज अ शंकराचार्य। सर प्लीज करेक्ट मी। देखिए, विषय एक तरीके से अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। विस्तृत रूप में पूज्य शंकराचार्य जी के विषय पे, जी देखिए, पूज्य शंकराचार्य जी का जहां तक विषय बिल्कुल स्पष्ट है। हम उनका मार्गदर्शन हमेशा से लेते रहे हैं। और उसके साथ साथ एक उदाहरण भी मैं दे दूं, जब अंबानी जी के एक पारिवारिक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे मिले थे, तत्काल उनके एक तरीके से चरण स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया पूर्ण रूप से पूज्य शंकराचार्य जी को। और शंकराचार्य जी ने प्रेम पूर्वक किस प्रकार से माननीय मोदी जी को अपने गले से निकाल कर एक माला पहनाने का आशीर्वाद स्वरूप काम किया, वो भी सबने देखा। तो मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है पर्टिकुलरली, तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है। कालनेमी का जहां तक सवाल है, मैं भी कह रहा हूँ कालनेमी, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कालनेमी, लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी के विषय पर कालनेमी किसी ने नहीं कहा। ये विपक्ष का एक नैरेटिव है, विपक्ष के द्वारा जो सेट किया गया, ये एक तरीके से फेक खबर कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने फैलाने का काम किया। कालनेमी स्पष्ट रूप से कहा गया, जो आतंकवादी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं, कानून विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, देश का विरोध करने वाले हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, इन लोगों के लिए कालनेमी एक अलग विषय हो सकता है। और उसके साथ साथ जो धर्म का चोला ओढ़ के अपराध को बढ़ावा देते हैं, वो उनके लिए एक तरीके से कहा गया। लेकिन जहां तक शंकराचार्य जी का विषय, पूज्य शंकराचार्य जी का नाम योगी जी ने नहीं लिया, इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन अविरल मलिक साहब, क्या आधिकारिक तौर पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के, क्या उनको एज ए शंकराचार्य रिकॉग्नाइज किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? क्योंकि 3 साल पहले उनके मठ के सामने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिस पेश किया गया था। हैज दैट नोटिस बीन विड्रॉन सर?
डॉक्टर मलिक। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ऑफिशियल स्टैंड का हमारे, जी। तो हमारा बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। वो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट एएनआई और आईएनएस मीडिया एजेंसीज के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रख दिया। वो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी सबकी श्रद्धा है। और जहां तक कानूनी एक तरीके से विषय है, कानूनी पहलू है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे लिए सम्मानित है, जुडिशरी सम्मानित है, जुडिशरी सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोपरि है, और जो उसका निर्णय होता है, कोर्ट्स का निर्णय होता है, वो फाइनल है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। Right, so let me go across to प्रोफेसर प्रजापति। प्रोफेसर प्रजापति साहब, आपने शुरुआत करी थी यहीं पर इसी शो के दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विषय में, मुझे याद है आप ही ने बोला था। सर, आपके मुताबिक जो आपके पास जानकारी है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अब उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को एज शंकराचार्य? क्योंकि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास शायद हो तो उस पर रोशनी डालें प्रोफेसर साहब। जी जी राजीव जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कब किसके पक्ष में बोलना है, ये अब्दुल मलिक जी ने सीख लीजिए भाई। वैसे तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान पार्टी का बयान नहीं होता है, लेकिन अभी बार बार अब्दुल मलिक जी ने रिपीट किया कि केशव प्रसाद मौर्य बयान दे चुके हैं। अरे केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है? एक स्टूल मंत्री बना कर रख दिया है उन्हें। एक स्टूल तक, पहले तो स्टूल मिलते थे, अब थोड़ी सी प्लास्टिक की कुर्सी मिलने लगी है, पहले तो स्टूल ही मिलते थे। तो कहने का मतलब यह है, आपके प्रश्न पर आता हूं मैं सीधे सीधे जी। मैंने उस दिन पूछा भी था और आप दोनों ने तो एक्सेप्ट किया था, और मुझे लगता है अब्दुल मलिक जी ही थे उस दिन भी मेरे साथ में। साथ में वही तो अब्दुल मलिक जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि शंकराचार्य हैं अब मुक्तेश्वरानंद। लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं मानते, भाजपा नहीं मानती, भाजपा के लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर उन्हें मानते होते तो सिर्फ वो इतना ही तो कह रहे थे कि सरकार केवल ये कह दे कि हाँ हमारे अधिकारियों से गलती हुई है, सरकार से गलती नहीं हुई है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारे अधिकारियों से गलती हुई है। अगर वो इतना ही सरकार कह देती है तो मैं गंगा स्नान करके ही वापस जाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, 144 सालों में, 144 साल जिसे कहते थे ना, या मैं कहूं हजारों सालों से जब से गंगा स्नान चल रहा है, शायद पहली बार यह होगा हिंदू वाली सरकार में कि पहली बार कोई शंकराचार्य गंगा से बगैर स्नान किए हुए लौटा है। मेरे ख्याल से शायद कभी इस इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ये हुआ हो तो अब्दुल मलिक भी बता दे। आखिर ये हिंदुओं की सरकार, और हिंदुओं की सरकार रहते हुए शंकराचार्य स्नान नहीं कर पा रहे हैं, इससे शर्मिंदगी की बात देश के अंदर नहीं हो सकती। और एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न ये कि शंकराचार्य को ही अपने आप को शंकराचार्य सिद्ध करना पड़ जाए, ऐसी सरकार पहली बार देखी है। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? अब्दुल मलिक जी अरावली पर्वत से ये चाहती है वो बताए कि अरावली पर्वत क्यों है। दिल्ली का AQI ये बताए कि दिल्ली का AQI इतना क्यों है। दिल्ली की जहरीली गैस ये बताए कि वो जहरीली क्यों है। भैया फिर सरकार हमने क्यों चुनी? सरकार इसलिए चुनी कि सब चीजें वही बताइए। इस देश के अंदर कभी ऐसा हुआ कि शंकराचार्य को ये बताना पड़े मैं शंकराचार्य हूं? आखिर उस नोटिस देने वाले SDM पर क्या हुआ? आज तक कोई कार्रवाई की गई? किसी भी तरीके की कार्रवाई की गई? आज तक कोई भाजपा का एक प्रतिनिधि, देखिए ये सबसे बड़ी बात है राजीव जी जो मैं कहने जा रहा हूं, भाजपा की तरफ से कोई भी एक प्रतिनिधि आज तक अब मुक्तेश्वरानंद जी से जाकर के मिला नहीं है आज तक। ये स्थिति है। लेकिन एक और चीज भी है सर यहाँ पे, ये बात तो ठीक है, उसके बाद प्रदीप जी भी आपसे सवाल पूछेंगे। सॉरी मैं इसके ऊपर जरा ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है सब्जेक्ट ये। सर ये भी जरा बता दिया जाए कि एक कोई ऑफिसर है प्रशांत सिंह जी उत्तर प्रदेश के, जो अभद्र व्यवहार
अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो अकेले हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं कि शंकराचार्य के साथ ऐसा अगर अभद्र व्यवहार होगा तो मैं सरकार में काम नहीं कर सकता। हिज नेम इज प्रशांत सिंह। सर व्हाट इज हैपनिंग? प्रोफेसर प्रजापति प्लीज आप बताएंगे सर। राजीव जी, है क्या, प्रशांत सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इनके आजकल ना भाजपा की सरकार में अधिकारियों में एक होड़ मची हुई है। क्या होड़ मची हुई है कि मैं कितने नफरत पैदा कर सकता हूं लोगों के बीच में, कितना सरकार के सगा बन सकता हूं, कितना योगी जी की नजरों में अच्छा बन सकता हूं, ये होड़ लगी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा हुआ है, शासन का कुछ प्रशासन सुन नहीं रहा है, शासन की कहीं चल ही नहीं रही है। ऐसे समझ लीजिए प्रशासन पूरी तरीके से तानाशाही पर आ गया है। उसका सिर्फ कारण ये है कि सब लोग ये चाहते हैं कि, इसलिए देखिए ना नफरती बयान किस तरीके से आते हैं। वो एक हमारे संबल, हमारे तो पड़ोसी है संबल, बिल्कुल संबल के एक सीओ हुआ करते थे, उस सीओ पर केस करने का कोर्ट ने निर्णय किया, और कोर्ट ने जब निर्णय दिया उस जज का ही ट्रांसफर कर दिया 2-3 दिनों के अंदर, और उसी जज को फिर ले आए, उस जज को ले आए जिसने पहले सारी, जिसे कहते ना जड़ जो था, फसाद की जो जड़ था वो जज था, उस जज को फिर से वापस ले आए। पहले जब जज ने निर्णय दिया तो 1 घंटे में कमेटी बन गई, एसआईटी की टीम गठित हो गई और सर्वे करने पहुंच गई। 1 घंटे के अंदर हुआ था संभल के अंदर, 1 घंटे के अंदर। और उसी सीट पर बैठे हुए फिर से जज ने जब निर्णय दिया तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब्दुल मलिक जी, ये तो संज्ञान में होगा नहीं होगा, और फिर से लेकर के उसी जज को ले आते हैं। इससे ज्यादा शर्म की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर हो नहीं सकती। डॉक्टर प्रजापति, इंडो यूएस डील ऐतिहासिक डील, मोदी जी बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि ऐसे डील हो ही नहीं सकते, पूरे फादर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, मगर अखिलेश यादव जी का आलोचना, राहुल गांधी जी का आलोचना, वन साइडेड डील, फार्मर्स पे कॉम्प्रोमाइज, इंडियन मार्केट्स को आपने खोल दिया, और हर डिसीजन ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। आज के जॉइंट डिक्लेरेशन भी ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, हर चीज यूएसए अनाउंस हो रहा है, तो आपका आलोचना क्या जायज है डॉक्टर प्रजापति? हाँ प्रदीप जी, एक जवाब दे दीजिए पहले थोड़ा सा। मेरी शायद याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। सन 2014 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टैरिफ कितना था? बोलिए। मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा बता दीजिए ना। बोलिए, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए ना। चलिए मैं बोल देता हूं, मुझे याद है, अच्छी तरीके से याद है। हाँ। मुझे याद है अच्छी तरीके से। सन 2014 में जब यूपीए की सरकार चलती थी, सन 2014 में यूपीए की सरकार चलती थी, और यूपीए की जब सरकार चलती थी तो अमेरिका की तरफ से जो था 2.5% टैरिफ था, 2.5%। नोटिस कीजिएगा जरा, ठीक है ना? 2.5%, जो बढ़ करके धीरे धीरे 50% हो गया। किसके शासन में हुआ? 56 इंच के शासन में हुआ, हिंदू हृदय सम्राट के शासन में हुआ, अंधभक्तों के सरदार के शासन में हुआ, सबका साथ सबका विकास करने वाले के शासन में हुआ। कितना? 2.5% से जाकर के 50%। वाह रे वाह, बेताज बादशाह, बेनाम बादशाह, ये क्या तरीका है आपका? आप उसको 50% ले गए, फिर वो 25% हुआ, और 25% से फिर वो 18% कर दिया, और तालियां बजा रहे हो, वाह भाई वाह। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि टैरिफ जो 2.5% हुआ करता था वो आपने बढ़ा करके, लेकिन बात ये ना, मीडिया, इसका सारा खेल है मीडिया का, सब मीडिया का। भाई मीडिया जो है ये दिखा रहा है कि 25% से घट करके 18% हो गया। 50 से ये एक भी चैनल नहीं दिखा रहा कि 2014 में ये 2.5% था, 2.5% से बढ़ करके 18% हो गया। ये एक भी चैनल नहीं दिखा रहा। ये देश के पतन का कारण है, ये देश की स्थिति का कारण है, ये देश की प्रमुख समस्या है।
दूसरी बात, अरे क्यों सीना चौड़ा कर रहे हो साहब? आपकी चीजों पर 18%, वाह वाह वाह, और उनकी चीजों पर 0%, वाह वाह। तुम्हारी चीज 100 रुपए में जाकर के वहां 118 में बिकेगी, उनकी चीज वहां से आकर के 100 रुपए में बिकेगी। तो कौन जीता कौन हारा? किसने समर्पण किया, किसने नाक कटवाई, किसने नाक रगड़वाई? मोदी जी ने, भाजपा ने, एनडीए की सरकार ने। शर्म आनी चाहिए। 38%, क्या करते हो? डॉक्टर प्रजापति साहब, 38% रिडक्शन। और पूरे अब बीजेपी का कहना नेबरहुड, हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है, सबसे अच्छा टैरिफ जो स्ट्रक्चर है ट्रंप और मोदी के हैं। तो आप ये मत पढ़ाइए, हाँ। ये मत पढ़ाइए, ये मत पढ़ाइए हमें, मैं नहीं पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, तो ये मत पढ़ाइए, सोने मत पढ़ाइए हमें। तो ये पढ़ाइए 2014 में कितना था। पाकिस्तान भाड़ में जाए, श्रीलंका भाड़ में जाए, बांग्लादेश भाड़ में जाए, बांग्लादेश 100% टैरिफ दे। क्या मतलब है हमें इससे कितना टैरिफ दे रहे हो? हमें देखना है अपने देश को। हमारा देश पहले 2.5% टैरिफ देता था, 18% टैरिफ क्यों हुआ? इसका जवाब चाहिए मुझे। प्रोफेसर प्रजापति, पाकिस्तान कितना दे रहा है, प्रोफेसर प्रजापति बताइए। बांग्लादेश कितना दे रहा है, मुझे ये मत बताइए। श्रीलंका कितना दे रहा है? मेरा देश क्या करता था? मेरा देश कहां ले जाकर के फेंक दिया आप लोगों ने? ये बताइए मुझे। प्रोफेसर प्रजापति, ये नहीं पढ़ रहा है, मैं मास्टर आदमी हूं, मैं सीधा सीधा पढ़ता हूं। प्रोफेसर प्रजापति, अगर आप टीचर हैं वैसे भी, आपको ये भी मालूम होगा सर कि 2014 से लेकर के अभी हम लोग 2026 में 12 साल हो गए हैं। 12 साल में दुनिया बहुत बदली है। 12 साल के अंदर 3 प्रेसिडेंट आ चुके हैं यूएसए में, इफ यू इंक्लूड प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो। प्रेसिडेंट ओबामा हुआ करते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप आए, प्रेसिडेंट बाइडेन आए और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए। हर एक की पॉलिसीज अलग अलग थी। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं 2.0 में जो आए हैं, इनकी पॉलिसी अलग हो गई है। अब वो तो अमेरिका पे डिपेंड करता है ना, वो क्या करेंगे। आपने कहा आप ये मत पढ़ाइए सर। 2012 में या 2014 में भारत की जीडीपी क्या थी? 2014 में या 2012 में क्या हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम था? क्या 2014 या 2015 में हमारे पास राफाल एयरक्राफ्ट था? क्या 2014 या 2015 में हमारे पास सुखोई मार्क 30 था? क्या 2014 में हमारे पास T-90 भीष्मा था? नहीं था ना। तो एवरीथिंग इवॉल्व्स, सो दिस इज ऑल्सो इवॉल्व्ड। इंडिया इज एट 18% अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप, China at 40%, Japan 15%, South Korea 15%, Thailand 19%, Switzerland 39%. All right, forget about Bangladesh, forget about Pakistan, Canada 35%. So all I'm saying, sir, is within the new framework established by Mr. Trump, India's got a good deal. From 50%, it has come down by 32%, 18%. और आगे भी negotiations होंगी। ऐसा थोड़ी है कि ये जो 18% है पत्थर की लकीर है। आगे भी negotiations होंगी ना, और कम होगा। My calculation is, which I said in August 25 को मैंने कहा था, मैंने आपको भी भेजी थी वो टेप, 12 के 15% के बीच में आ जाएगा। And that is affordable, that we can work on. और अभी भी ये भी आपको बता दूं, दोबारा बोल रहा हूं, 144 ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से हैं जिसपे 0% टैरिफ है। और जब 50% भी ट्रंप साहब ने लगा दिया था, तब भी हम लोग 0% टैरिफ दे रहे थे सर। उसकी मैं पूरी लिस्ट भेज देता हूं आपको। 144 such products. All I'm saying is, it's a new world. We have to work in that new world. आखिरकार आपको याद होगा जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, जबरदस्त तरीके से जीत कर आए थे, बहन जी की सरकार को हराया था उन्होंने। सर उन्होंने हर एक को लैपटॉप दिया था, याद है? मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर बने थे, क्या उन्होंने लैपटॉप दिया? क्योंकि लैपटॉप उस वक्त होता ही नहीं था, तो लैपटॉप कहां से देते? तो मेरा ये कहना है प्रजापति साहब, आप तो ऐसा ना कहें ना। थिंग्स इवॉल्व। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट व्हाट हैज हैपेंड। जो नेगोशिएटिंग टीम है हिंदुस्तान की, उन्होंने मेरी समझ में बहुत अच्छा काम किया है। अब आप बोलें सर, प्रजापति साहब प्लीज। नहीं राजीव जी, भाई मैंने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है। तो पहले टीवी हुआ करता था बहुत बड़ा,
देखा था ना, क्योंकि डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व बनते थे। जी, डायोड वाल्व, उसके बाद यस, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब आए, उसके बाद ट्रांजिस्टर आए, डायोड वाल्व आए, ट्रायोड वाल्व आए, उसके बाद आईसी आई, फिर उसके बाद और बीएसआई, बीएलएसआई, ये सब चीजें आती चली जी, गई, और धीरे 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 करके साइज क्या हो गया, आज टीएफटी का साइज इतना पतला सा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें जो आप बता रहे हैं, ये चीजें तो होनी है, इसमें कोई भाजपा ही का काम थोड़ी है, ये इसमें मोदी को श्रेय नहीं देना चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हो रहा है, विज्ञान डेवलप। पहले जो है क्या, कभी 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 किसी ने सोचा था कि व्हाट्सएप पर सीधे वीडियो कॉल हो जाएगी, या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए किसी व्यक्ति को मेल ईमेल, ये किसी ने सोचा था? ये प्रकृति का नियम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का। दूसरा, आपकी बात को मैं नहीं नकार रहा हूँ, हाँ ये ठीक है कि अन्य देशों की तुलना में टैरिफ कम है, लेकिन क्यों भाई? आखिर आप तो 56 इंच के सीने वाले हो ना, आपको तो पूरा विश्व में डंका बज रहा है ना आपका। फिर दूसरी बात, राजीव जी, समझ में ये नहीं आता, हर बार ट्रंप ही सब चीजों को जब क्यों बताते हैं भाई? ट्रंप का पहले रिप्लाई क्यों आता है? एक बार मोदी जी भी इनिशिएट कर दिया करे ना, लोगों को बता दिया करे कि इस तरीके से होता है। और ट्रंप क्या लिखते हैं? मोदी जी रिक्वेस्टेड मी, वाह वाह वाह, मोदी जी ने रिक्वेस्ट की। क्यों रिक्वेस्ट की भाई साहब? क्या जरूरत पड़ गई आपको रिक्वेस्ट करने की? क्या नाक कटवाने वाली बात हो गई? नहीं हो गई, ये तो रिक्वेस्ट की। सरेंडर भी आप करेंगे, और सरेंडर की सूचना कौन देंगे? ट्रंप साहब देंगे। सरेंडर आप कर रहे हैं, सूचना कौन दे रहा है? ट्रंप दे रहे हैं। टैरिफ आपके द्वारा फ्री किया जा रहा है अमेरिका का, और सूचना कौन दे रहा है? ट्रंप साहब कर रहे हैं। अरे तो ये काम प्रधानमंत्री जी भी तो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद क्यों नहीं कर सकते? मेरा सिर्फ ये प्रश्न है। दूसरा वही है, देखिए मैं अपने स्टैंड पर क्लियर हूं, मैं तो सीधी सी बात है भाई, मैं तो ये मान रहा हूं 2014 में 2.5% था, 18% क्यों हुआ? सर 3.1%, 3.1%, पहले ये दिखाइए, फिर बात की बात है, फिर बात सर की बात है कि 3.1% पाकिस्तान पर कितना है। पहले ये बताइए, ये मत बताइए 50 से 25% हुआ, 25 से 18% हुए, ये मत दिखाइए। पहले ये दिखाइए कि पहले 2.5% था, और 2.5% से 2014 में 2.5% नहीं था, बढ़कर के 50% हुआ। सर US tariffs were on a weighted average of 2.9%, effectively at 3.1% in 2014. Absolutely correct. Quite true. There is no doubt about it. In fact, Obama साहब, मैं अप्रोक्स 2.5% बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर 3.1%, से पूछ रहा था, मुझे याद नहीं थी। 3.1%. But the fact is, when President Obama had come here, he had said very clearly to डॉक्टर मनमोहन सिंह कि भाई ये आपने जो हार्ली डेविडसन है इसके ऊपर 140% ड्यूटी लगा रखी है, हमारा मोटरसाइकिल बिक नहीं रहा आपके यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेट मी गो टू संजय द्विवेदी जी। द्विवेदी जी इज नॉट स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर उनके पास चले जाओ, मैं द्विवेदी साहब के पास, वो बोले नहीं है बिल्कुल भी। ही हैज बीन विद अस। थोड़ा सा बस एक चलिए, अच्छा उनसे पूछ लिए, फिर पूछ लिए प्लीज। द्विवेदी जी, तो पहली बार मुंबई शहर में शिवसेना का मेयर नहीं है सर 25 साल में। संजय द्विवेदी जी, पहली बार ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो 4 नंबर की पार्टी थी सर, महाराष्ट्र में नंबर 4 पे आती थी, नंबर 4 पे, आज नंबर 1 पे हो गई सर। शिवसेना के कुर्ते को पकड़ के आगे बढ़ के आज देखो कहां बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी सर, आपके सर पे। द्विवेदी जी बोलिए। शिवसेना जब भाजपा का जो मेयर बन रहा है वो तो एकनाथ शिंदे, जिनको उन्होंने गद्दारी करवाई, 50 मुके एकदम मुके किए, सीबीआई ईडी का कर दिया, उनको अपने साथ लाया। लेकिन भाजपा शिवसेना का एकनाथ शिंदे नहीं बना पाए, क्योंकि इनसे सपोर्ट नहीं दिया। अगर शिवसेना इनकी असली शिवसेना होती तो शायद आज भाई, पिछली 2017 में भाजपा का शिवसेना का जो मेयर बना था वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना था। हमारे जो 84 सीटें आई थी ना, तो हमने कोई अपने 130 सीटें जीत के मेयर नहीं बनाया था। तो आपको ये कहना, आपका कहना गलत है कि साहब भाजपा का मेयर बन रहा है। पिछली बार हमने भाजपा के सहयोग से मेयर बनाया था, आज उन्होंने गद्दारों को साथ लेके मेयर बना रहे, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। वहां के लोगों ने जो दिखा दिया है वो दिखाया एकनाथ शिंदे को,
कि आप असली असली करते हैं, आप अवश्य असली नहीं है। असली मानिए उद्धव जी ठाकरे हैं। मैं भी दूसरी बातों पे आ रहा हूँ जिसपे आप डिस्कशन कर रहे थे। जी बोलिए सर, बोलिए। बहुत अच्छी बात आपने कही साहब, ये सुखोई आ गया, तमाम चीजें आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तमाम चीजें सर आ गई। लेकिन आपको 1947 का दिन याद है सर, जब देश आजाद हुआ था, तब क्या था देश के पास? आप उसकी भी चर्चा कर लेते संग में। 1947 में देश के पास क्या था? कुछ नहीं था। इसकी चर्चा इसके पहले के आप बोले, मैं आपको बता दूं, विंस्टन चर्चिल जो हाल ही में ऑपोजिशन के लीडर बने थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, क्लेमेंट एटली ने हराया था उनको। विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि भारत जो है 10 या 15 साल के अंदर अंदर इसके 5 या 6 टुकड़े हो जाएंगे। यह भी कहा था कि भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत के पास एक दाना नहीं बचेगा खाने के लिए। यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अब आप बोले सर, अब सुनिए सर, बोलिए बोलिए। 1947 में देश के पास क्या था सर? कुछ नहीं। भारत पाकिस्तान साथ साथ अलग हुए जी। आज पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए और वहीं भारत की स्थिति देख लीजिए। तो भारत की जो स्थिति बनी, हिंदुस्तान की जो स्थिति बनी, वो अचानक तो बन नहीं गई, किसी ना किसी ने किया तो बनी ना। आज कोयले का इंजन चलता था, आज हमारा इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहा है। रेलवे लाइन कितनी थी उस समय, अब रेलवे लाइन कितनी हो गई उस समय। भाभा अनुसंधान केंद्र नहीं था उस समय, भाभा अनुसंधान केंद्र बना। तमाम ऐसे आईआईटी बनाए गए, तमाम बीचीओ बनाए गए, तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, तमाम चीजें जिनका मैं नाम नहीं लेना, डिबेट हमारी लंबी हो जाएगी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तमाम ऐसी चीजें बनाएंगी। जो हमारे बैंक थे वो ऋण नहीं देते थे किसानों को, नहीं देते थे उनको, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और जो शोध हुए हैं, जो पिछले 2014 से पहले जितनी चीजें हम हर चीज में आगे हो गए थे। चाहे आपका आज जो हम डिबेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक समझ लीजिए, चाहे कोई भी चीज समझ लीजिए, हमारे अनुसंधान केंद्र से तमाम चीजें हो रही थी। हम एयरपोर्ट, हम सुई से लेके आज हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तक बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो ये चीज अगर कही जाए, हम इसमें थे। और आज की डेट में जो भी काम हो रहे हैं, जो अनुसंधान केंद्र बनाए गए थे, उन्हीं की मार्फत से काम हो रहे हैं। और अगर ये चीजें माननीय मोदी जी कर रहे हैं तो 14 साल में इतना तो करना ही पड़ेगा उनको। जो आदमी पार्टियां तोड़ रहा हो, विधायक तोड़ रहा हो, विधायक तोड़ के अपनी वो बना रहा हो, चुनाव को कब्जे में किया हो, ईडी सीबीआई के डर से पार्टियां तोड़ रहा हो, ईडी की बात आप करते हैं। 12 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे आ रहे थे, 12 साल। तो अब आप किसको क्या कहेंगे? 12 साल वो क्यों दिया रहे जमानत पे? तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। उनको अगर प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जो नीतियां मध्यम वर्गीय और गरीबों की नाम लीजिए ना, नाम आज मुझे बता दीजिए कि बजट आया, कितनी जॉब के लिए कहा गया, किसानों के लिए क्या कहा गया, किसानों के लिए क्या देंगे। आप अगर चुनाव जीतने के लिए ऋण माफ करने की बात महाराष्ट्र में करते हैं कि हम किसानों के ऋण माफ कर देंगे, नहीं होने वाला। किसानों संजय राउत पैसे नहीं है, और उसके कहां से लाएंगे पैसे? द्विवेदी जी, स्पीकर ओम बिरला जी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को खतरा था, जो महिला जमा हुए थे उनके सीट के पास लोकसभा में अटैक करने वाले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। संजय राउत कह रहे हैं कि कोई थ्रेट नहीं, कोई थ्रेट नहीं। क्या ओम बिरला का जजमेंट खराब था? संजय राउत डिफेंड कर रहा है कि कोई अटैक नहीं होना था, प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था, भाषण लोकसभा में देना चाहिए था, थैंक्स गिविंग। किस प्रकार से देखते हो स्टेटमेंट को? ये तो बड़ी हंसी की बात है सर। ओम बिरला, मैं तो कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि अध्यक्ष है वो, बड़ी हंसी की बात है। एक प्रधानमंत्री अपने सांसदों के पास सुरक्षित नहीं बताइए तो देश की जनता सुरक्षित कहां रहेगी? तो देश की बेटियां सुरक्षित कहां रहेंगी? देश की महिला सुरक्षित कहां रहेंगी? देश के लोग सुरक्षित कहां रहेंगे? अगर हमारा प्रधानमंत्री इतना डरपोक है, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको तो तुरंत आना चाहिए था और कहना चाहिए मैं आ रहा हूँ संसद भवन में, और संसद में आ रहा हूँ और मैं अपनी दूंगा। डरने की क्या जरूरत थी? अगर वो अपने सांसदों डर रहे हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष हमको नहीं चाहिए। वो क्या देखना दिखाना चाहते हैं? अरे इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हम इसमें तानाशाही और अहंकार लेके नहीं चल सकते। जिस तरह से अभी अफजल मलिक जी कह रहे थे शंकराचार्य के बारे में, तो शंकराचार्य की बेइज्जती की गई है,
जो जितनी उनकी बेइज्जती की मारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, जब आपके पास वो नहा के नहीं गए, कितनी बड़ी बात आप समझ लीजिए। देश के लिए दुर्भाग्य कि ऐसा मुख्यमंत्री इस देश में और ऐसी भारतीय जनता पार्टी इस देश में है। ऐसी पार्टी का तो धिक्कारना चाहिए। आप पाल घर की बात करते हैं, जब देखिए तब कहते हैं साहब आप इसमें कोई वोट नहीं होनी चाहिए, तो पाल घर की बात आप क्यों करते हैं? जहां आपके ही आदमियों द्वारा, आपके लोगों द्वारा पालघर में इतनी बड़ी घटना घटी गई और 24 घंटे में सबको 2 आदमी गिरफ्तार किया गया था। आज शंकराचार्य जी की जो बेइज्जती हो रही है, 122 लोग, जो उनकी बदनामी की गई है, उसको कागे साहब शंकराचार्य नहीं है। कितनी बड़ी घटना। बट क्या शंकराचार्य को 40 दिन का नोटिस देना चाहिए? शंकराचार्य जी को 40 दिन का नोटिस देना चाहिए कि ये सब घोषणा करो कि गौ माता राज्य माता होगा, आप बीफ का बैन करो, बीफ एक्सपोर्ट्स को बैन करो। ये 40 दिन का नोटिस इस प्रकार से देना क्या ठीक है? जो हिंदूवादी पार्टी में अगर हम बीफ के विरोध करने की बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करने जाए? जिसके लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में अपने फंड में करोड़ों रुपए दिए हुए हैं जिन कंपनियों से, बीबी कंपनियों से, तो उनके पैसे वापस करें और बीफ बंद करवाए। क्यों नहीं बंद करा सकते भाई? और राजमाता को घोषित करें, गाय को राजमाता घोषित करें। महाराष्ट्र में किया ना, शिंदे ने पैदल कर दिए गए थे, वो मुख्यमंत्री बन गया वहां पे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, सिद्धांत है, इनके हाथी के दांत, एक कहावत आपने सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने का अलग। वही भारतीय जनता पार्टी की हालत है। ये दे तो कुछ दिखाते हैं और अंदर कुछ काम करते हैं। अंदर क्या करते हैं कि 50 होके ले लो, हम तुमको ईडी से पकड़वा देंगे, सीबीआई से पकड़वा देंगे, और इसके बाद नहीं तुम्हारी पार्टी में आ जाओ तो ईडी वाले उनसे सीबीआई Right, so Dwivedi ji, I have to go to Abhiraj Malik साहब, and then after that to Prajapati साहब। सुनिए सर, बहुत देर मैंने इंतजार किया मैंने। जी बोलिए। परिवारवाद की बात करते हैं कि साहब उद्धव ठाकरे परिवारवाद में है, अखिलेश यादव परिवारवाद में है, तेजस्वी यादव परिवारवाद में। अब क्या होगा इनके पास? आज की डेट में सुनेत्रा पवार को बना के परिवारवाद का बढ़ावा नहीं दे रहे क्या ये? या बिहार में पहले दूसरी पार्टी है ना सर, चाचा से गठबंधन किया, फिर उन्होंने हनुमान जी बेटे से गठबंधन कर लिया, आज सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है क्या? या भ्रष्टाचारी अजीत दादा पवार को स्वर्गीय मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके लिए कहते थे चक्की बीसिंग। इसके बाद कहते 17,000 करोड़ घोटाले बाद माने प्रधानमंत्री जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जिनके लिए कहते थे कि साहब वो भ्रष्टाचार उनको 17,000 करोड़ के उनके पास वो है, तो आज एनसीपी पूरी एनसीपी उन्होंने ले ली। भ्रष्टाचारी पार्टी देश की वो उन्होंने अपने आप समाहित कर ली। भाई ये सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ना इनके लिए शंकराचार्य महत्वपूर्ण है, ना यहाँ के गरीब महत्वपूर्ण है, ना यहाँ के मध्यम वर्गीय महत्वपूर्ण है। इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? इनके फंड में चंदा दो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चंदा दो, पीएम केयर फंड में चंदा दो और इनकी सरकारें बनाओ। अगर सरकार नहीं बनाओगे तो वो आदमी जेल जाएगा, इसके बाद जो मान जाएगा उसके पूरे दोष माफ हो जाएंगे, चाहे वो अजीत दादा पवार हो। अजीत पवार जी के मौत को ऑपरेशन लोटस कहना, एक्सीडेंट को ऑपरेशन लोटस कहना कहां तक जायज है? संजय राउत ने कहा यह पार्ट ऑफ ऑपरेशन लोटस है। क्या बीजेपी ने साजिश किया है अजीत पवार जी के खिलाफ? बीजेपी ने साजिश किया नहीं की, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या आदित्य ठाकरे ने साजिश की थी? 4 महीने तक डंका बजता रहा, दिखा रहे वो यहां से निकल रहा है, वो यहां जा रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा, जबकि मुंबई पुलिस ने कह दिया था आत्महत्या है। तो एफआईआर वहां कराने बिहार क्यों गए भाई? तो राजनीति नहीं कर रहे थे क्या? उद्धव ठाकरे सरकार थी तो सीबीआई की जांच नहीं कर रही क्या था वो था क्या भाई? वो क्या कोई अच्छी चीज थी? मरे आदमियों पे आप कितने घटिया राजनीति शुरू कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सिर्फ आप, हम तो मांग कर रहे हैं। Can we show that picture properly, please? ममता बनर्जी ने कहा द्विवेदी जी 1 सेकंड, आप ही की बात करने वाला हूं, 1 सेकंड जांच करा दीजिए। आप ही की बात करने वाला हूं, 1 मिनट। Can we put that picture on full screen? This is 2004. That is Dr. Manmohan Singh surrounded by 11 BJP MPs. 11 भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का घेराव किया। देख लीजिए, डॉक्टर साहब हिले नहीं, वहां से बैठे रहे।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे टेबल पे आकर के कोई पेपर फाड़े या कोई कुछ और करे। और ये भी आपको बता दूं कि जब कांग्रेस के बाकी एमपीज ने कहा कि हम इनको मार मार के भगाते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल चुप बैठे रहिए, कोई आगे नहीं आया, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। राइट, सो कैन वी हैव द गेस्ट बैक ऑन प्लीज। दिस इज डॉक्टर मनमोहन सिंह बीइंग घेराउड बाय बीजेपी एमपीज इन 2004। अविरल मलिक साहब, ये भी प्रधानमंत्री, मैं यही बात कह रहा था सर, जी। मैं यही बात कह रहा था। जी। तो देश को क्या दिखाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? देश को खोखला क्यों कर रहे हैं? So देश को खोखला करने की जो आज उनकी जो नियम कायदे कानून, मैं बार बार विरोध में किसी पार्टी का नहीं करता हूँ, मैं व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं करता हूँ, लेकिन जो ये नीतियां है, जो ये सिद्धांत है, उनका मैं विरोधी हूँ। So let's ask Dr. Aviral Malik. So let's ask Dr. Malik. Dr. Malik, यहां पर सिर्फ 3 महिला एमपी ट्रेजरी बेंचेस के आसपास खड़ी थी और ओम बिरला जी को यह लगा कहीं प्रधानमंत्री जी का घेराव ना हो जाए, और प्रधानमंत्री जी को कह दिया गया कि अभी ना आइए। ये तस्वीर आपके सामने है सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, आसपास 11 आपके एमपी खड़े हैं, आपके एमपी हैं। डॉक्टर साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका भी आपको चिल्लाना चिल्लाओ। और फिर जब चिल्ला लिए, आधा घंटा जब हो गया, तो डॉक्टर साहब ने खुद कहा यार आप थक गए हो गए, बैठ जाओ, अब आगे काम शुरू करें। अब आप बताएं डॉक्टर अविरल मलिक साहब, प्लीज, अब आपके सामने है, बोलिए सर। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, हम बहुत उनका सम्मान करते रहे हमेशा से, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। और जहां तक विषय एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं सोचता हूं ओम बिरला जी के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया, वो स्पष्ट किया गया, संविदित है वो विषय, और वो ऑफिशियली उनके द्वारा कहा गया, मैं समझता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये विषय नहीं कहा, ये बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा, ये सरकार के किसी मंत्री ने नहीं कहा, ये लोकसभा स्पीकर जो एक तरीके से पीठ है वहां उनके द्वारा कहा गया स्पष्ट तौर पर। तो मैं सोचता हूं अगर उनके द्वारा कहा जा रहा है, चेयर के द्वारा कहा जा रहा है, तो एक तरीके से वो किसी तथ्य के आधार पे वो कह रहे हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से इस विषय गंभीरता का, मैं सोचता हूँ बहुत ही ये गंभीर विषय और ये दुखद भी है। और जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का विषय है, तो हम उनका हमेशा सम्मान करते रहे जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, इसमें कोई कटबट नहीं है। और माननीय मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के पद का कम से कम विपक्ष को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये कहा गया कि 3 वहां पर महिलाएं थी, महिला एमपी थी कांग्रेस की, और वो शायद घेराव करने वाली थी या उनको चूड़ियां देने वाली थी या क्या करने वाली थी, मालूम नहीं मुझे। हो सकता है कि स्पीकर साहब की जो इंफॉर्मेशन है ठीक हो, हमें मालूम नहीं है। जबकि हमारी जो वर्षाताई गायकवाड़ हैं यहीं से एमपी हैं, धारावी बिल्कुल लग के है बीकेसी से सर, बिल्कुल 2 मिनट दूर है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, हम तो वहां पे वैसे ही डिस्कस कर रहे थे भाई ये क्या हो रहा है, दैट्स इट। इन एनी इवेंट, लेट्स कम बैक टू अ मोर सीरियस सब्जेक्ट। जो राकेश प्रजापति साहब से बात हो रही थी और अभी संजय द्विवेदी जी से बात हो रही थी, सर 2014 में के बिगिनिंग में, मई के पहले, मई 17 को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया कि 26 को, याद नहीं है मेरे को, 17 की 26, 1 ऑफ द 2 डेज। उसके पहले क्या टैरिफ थे, पूरी दुनिया का हाल क्या था, किस प्रकार था सर, उसको क्या आज की तारीख से उसको तुलना करनी चाहिए? द वर्ल्ड इज चेंज सर, दुनिया बदल गई है ना, जहां तक मैं समझता हूं। आप बताएं डॉक्टर अविरल मलिक प्लीज। जी देखिए, जहां तक एक तरीके से विषय है जो आपने कहा कि लोकसभा स्पीकर साहब का इंफॉर्मेशन का, मैं समझता हूँ लोकसभा स्पीकर साहब के द्वारा अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो तथ्यों के आधार पर कहा जाता है, एविडेंस बेस्ड होता है। और रही बात एक तरीके से इस देश के लोकतंत्र की, तो चारों स्तंभों का मैं समझता हूँ सम्मान होना चाहिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का विषय हो, लेजिस्लेचर का विषय हो, जुडिशरी का विषय हो, मीडिया का विषय हो। अब विपक्ष मीडिया को गोदी मीडिया कह देता है, एग्जीक्यूटिव को कुछ नहीं समझता है, लेजिस्लेचर पे जिस प्रकार से स्पीकर साहब ने कहा, तो लेजिस्लेचर क्या हाल है वो सब के बीच है। अब रही बात जुडिशरी की, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिस दिन पक्ष में फैसला सुना दे सब बढ़िया है, अगर खिलाफ फैसला सुना दे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भी किस किस प्रकार के बयान आते हैं वो भी सबको मालूम है। और जहां एक तरीके से हमारी पार्टी का, हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए, आपसी सम्मान बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, शिष्टाचार बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उस परंपरा के लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा के लोग हैं,
जिसमें वाजपेयी साहब के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जाता था कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी प्रकार से किसी रूप में नहीं होने चाहिए। और उसके साथ साथ लोकतंत्र था, है, रहेगा, हम इस चीज में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र और ट्रम्प साहब के टैरिफ के बारे में बात आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये वाजपेयी साहब का बयान है। जी, ट्रम्प साहब के टैरिफ के बारे में बात की जाए, 2014 में 3.1% था एवरेज, बिल्कुल देखो, बिल्कुल देखिए वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जी देखिए, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आखिर किसे घटाना पड़ा, किसे झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप साहब को झुकना पड़ा। हमने बिल्कुल स्पष्टतापूर्वक कहा था कि भारत नहीं झुकेगा, हमारा स्पष्ट मानना था। लेकिन एक बड़ी बात है, बहुत से लोग कह रहे थे कि ट्रंप नहीं झुकेगा, अमेरिका नहीं झुकेगा, अमेरिका नहीं झुक रहा है, अमेरिका एक तरीके से भारत के खिलाफ ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो तमाम सारी चीजें कही जा रही थी, अपना अपना सबका विश्लेषण एनालिसिस था। लेकिन आज जो रियलिटी है, जो सत्यता है, जो स्पष्टीकरण स्पष्ट तौर पर सामने आया, वो बिल्कुल क्लियर कट है कि किस तरीके से अमेरिका को झुकना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को झुकना पड़ा। और रही बात मोदी जी और ट्रंप साहब की मित्रता की, तो बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी है, संविदित है। और जहां तक विषय पर्टिकुलर अगर बात कर जाए भारत की, तो भारत विश्वगुरु भारत, विकसित भारत, मजबूत भारत की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, जब इकोनॉमिक विषय चर्चा हो रही है, बजट की अगर बात कर जाए तो देश कृषि प्रधान देश है, और बजट में जिस प्रकार से इस बार पूरा फोकस किसान के ऊपर था, पूरा बजट किसान का बजट मैं कहूंगा, क्योंकि और ये विकसित भारत और 2047 का बजट है, क्योंकि बहुत बड़े किसान नेता उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 2-3 वरिष्ठ किसान नेता, मैंने उनसे इस विषय पर चर्चा की, उनका इस विषय पे वो सहमत थे। जो सोलर के सामान पे रेट घटाया गया, सस्ता किया गया, उससे सीधा किसान को लाभ होगा, क्योंकि किसान की जो ट्यूबवेल है वो सोलर के माध्यम से संचालित होती है, और एक तरीके से प्रारंभ हुई है। हर ट्यूबवेल पे सोलर पैनल नहीं है, डॉक्टर मलिक किसान चाहते हैं कि सोलर पैनल लगे ट्यूबवेल्स पे। डॉक्टर मलिक, जो डॉक्टर राकेश प्रजापति ने जो प्रश्न चिन्ह उठाया, उस पर जवाब दीजिए। हर चीज यूएस से डिक्लेयर क्यों हो रहा है? हर चीज ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप ने सीज फायर, ट्रंप ने डिसाइड किया। देखिए अभी प्रश्न सुनिए 25% जो 32% वेवर वो ट्रंप ने अनाउंस किया। ट्रंप अनाउंस करता है आपने इंडियन मार्केट्स में हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाएगा और जाएगा। ट्रिपल इंपोर्ट, और राजीव जी मौजूद है, $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां प्रॉमिस किया यूएस। तो ये आप कैसे, जयराम रमेश, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये सरेंडर मोडी हो गया, ये ट्रंप को नहीं झुका है, हम झुक गए। बोलिए डॉक्टर। देखिए बिल्कुल देखिए, अगर बात कर जाए उदाहरण के रूप में, तो राजीव जी आप मौजूद हैं, और अगर राजीव जी के द्वारा किसी चीज का रेट बढ़ाया जा रहा है, राजीव जी अगर उस चीज को घटा रहे हैं, तो वो तो राजीव जी का फैसला हुआ ना। वो राजीव जी ने बढ़ाया था, वो उस पर कम किया, तो वो राजीव जी का फैसला हो गया। अब वो अमेरिका क्यों कर रहा? अमेरिका ने बढ़ाया था, अमेरिका ने घटाया, बिल्कुल स्पष्ट है। भारत ने बढ़ाया भी नहीं था। अगर भारत का इसमें कोई रोल होता, भारत का दखल होता प्रारंभिक दौर में, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता। तो अमेरिका की गलती थी, अमेरिका को एहसास हुआ, अमेरिका झुका, स्पष्ट है। और रही बात जहां तक विषय एक तरीके से यूएस का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट इस चीज को समझना चाहिए कि भारत आज विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा, और 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये रिपोर्ट्स कहती हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। डॉक्टर प्रजापति साहब ने यह बोला है कि ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं, आप रशियन तेल खरीदेंगे नहीं। आपने रशियन तेल खरीदा, 25% और मैं लागू कर दूंगा ट्रेड टैरिफ। उन्होंने अनाउंस किया कि ट्रिपल इंपोर्ट, यानी सरप्लस जो भी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो भी है, ओपन मार्केट, यहां पर उतने टैरिफ में, रेसिप्रोकल टैरिफ में पूरे इंडिया के एग्रीकल्चरल मार्केट खुल गया है, और अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। तो अलग अलग चीज जो वो डिक्टेट कर रहे हैं। ट्रंप बोल रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये करना पड़ेगा। ये गलत है ना, ये यानी हमको झुका दिया है डॉक्टर मलिक। नहीं, बिल्कुल देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ट्रंप साहब का, तो आपने अमेरिका के विषय पे कहा, ऑपरेशन सिंदूर को भी इसमें जोड़ा, तो ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका ने जो कहा, अमेरिका को उससे पीछे हटना पड़ा, वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमने जवाब दिया तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया जब भारत ने स्पष्ट कर दिया। और भारत और पाकिस्तान का जो विषय है वो हमारा निश्चित रूप से एक ऐसा विषय जिस पर आपसी हम चर्चा करते हैं, आपसी विषय होता है।
और आपस में तय करते हैं, आपसी बात के आधार पर तय होता है, इसमें किसी और के दखल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब उसके बावजूद भी अगर कोई कह रहा है कि ये हमारे द्वारा किया गया, तो मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से बेमाना है। अब कल को कोई व्यक्ति सामने आए और वो दावा करने लगे कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवा दी, और उसकी कोई हैसियत ना हो, तो मैं समझता हूं वो तो हास्यास्पद चीज हो जाएगी। तो ऐसे ही हास्यास्पद है कि ट्रंप साहब का एक अलग विषय है, ट्रंप साहब का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और ट्रंप साहब बीच में कूद के दावा करते हैं, तो वो तो हास्यास्पद है। जी, लेकिन एक चीज तो है सर कि जहां तक के टैरिफ्स का सवाल है, बाकी सब चीजों का सवाल है, आज पीआईबी की तरफ से जो यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो आज प्रेस रिलीज इशू किया है, उसमें तो क्लियर कट है कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एरियाज वेयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएसए हैव बीन अलाउड अंदर, जैसे सोरगम हो गया, सोयाबीन हो गया, बाकी सब चीजें हैं, वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना वहां से, और वो भी ऑलमोस्ट एट 0% टैरिफ। ऐसी बात तो नहीं है। वी हैव ओपनड अप आवर एग्रीकल्चर मार्केट आल्सो, ऑन दैट देयर इज नो डाउट। प्रोफेसर प्रजापति सर, यू वांटेड टू से समथिंग व्हेन संजय द्विवेदी साहब वाज स्पीकिंग। संजय द्विवेदी साहब कुछ बोल रहे थे, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर, वेटिंग फॉर। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि बड़ा देश में क्या माहौल चल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। संसद भवन जी, जो मेरे ख्याल से भारत का सबसे सेफ जगह है, सबसे सेफ जगह जी, अगर उससे ज्यादा सेफ जगह मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोई दूसरी हो। ठीक है, और उस सेफ जगह पर भारत के प्रधानमंत्री को खुद खतरा है, इससे ज्यादा कोई तौहीन की बात भारत के लिए हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है देश के, तो 140 करोड़ लोगों की कैसे हिफाजत करेंगे, कैसे हिफाजत करेंगे? इसका मतलब भाजपा का ये धोखा है, भाजपा धोखा है बहुत बड़ी, और फालतू की बातें है कि हम बहुत बड़े 56 इंची वाले लोग हैं, हम ये हैं वो हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरा, अब्दुल मलिक जी, आपने अभी आपकी सवाल का कोई ज्यादा तो जवाब दिया नहीं। भाई आखिर कैसे कैसे भारत की जीत है, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने, चलिए ठीक है, ये मान लिया, मैंने मान लिया, आप भी कह रहे हैं, राजीव जी, अब्दुल मलिक जी भी कह रहे हैं कि 25% से घट के 18% हो गया। सर 50 से 50%, 50%। अब 50 से पहले 25 हुआ, 25 से 18 हो गया, मान लिया। जीत तो तब होती जब तुम अपनी चीजों पर 19% लगा के दिखाते। आपकी चीज तो 0% टैरिफ पर जा रही है, तब जीत होती ना आपकी। आपकी क्या जीत है? आपकी चीजों पर 0% टैरिफ, उनकी चीजों पर 18% टैरिफ। शर्म नहीं आती, और झूठ बोलने की भी हद होती है। अब भी सीना चौड़ा करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद सीना चौड़ा करना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, किसी और को समझाना पढ़ लेंगे, लेकिन आज लोग समझ रहे हैं, अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग जागरूक हो गए, अब लोग जानने लगे हैं। सबको पता चल गया है कि वाह भाई वाह, कैसा 56 इंच का सीना, वो 18 रुपए लेगा और तुम्हें चवन्नी भी नहीं देगा। अरे चवन्नी लगा देते, 0.25% ही लगा देते, कहने को तो होता हमने चवन्नी लगा दी, कम से कम एक चवन्नी पहुंच गई है आपके पास, आपके पड़ोस की, क्योंकि वो कहते थे चवन्नी है, मैं लुढ़कूंगा नहीं। ऐसे ही लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर ये सारे लोग देश से, इन भाजपा से अलग हो जाए ना अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों, मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों अपनी जातियों में ये कह करके आए थे कि हम अनुसूचित जाति का लाभ दिलवाएंगे। अपने तो मौज मार रहे हैं, मस्त हैं, सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन जनता पिसी जा रही है। जनता को 17 जातियों की अनुसूचित जाति का फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये लोगों ने देश के लिए, और आने वाले समय में इन लोगों को पछतावा होगा कि हमने भाजपा को गलत संरक्षण दिया हुआ था। मैं तो संरक्षण ही कह रहा हूँ जी। और दूसरी चीज क्या है सर, चाबहार पोर्ट भी हम लोगों ने गुड मॉर्निंग कर दिया, उसको हम चले गए वहां से। इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, 25 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद
चाबार पोर्ट भी ईरान से तकरीबन हम लोग निकल गए वहां से। जी प्रदीप जी कुछ डॉक्टर प्रजापति साहब, बट मोदी योगी का डेवलपमेंट मॉडल विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, विश्व गुरु बनने का जो सपना है, हाल ही में योगी जी जापान और सिंगापुर के टूर ले रहे हैं। जापान और सिंगापुर योगी जी जाने वाले हैं। उनका कहना है कि वो सपना जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने के लिए वहां से निवेश जिस प्रकार से लेके आने वाले सिंगापुर, जापान, तो क्या ये संघर्ष जो मोदी योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी हाल ही में मलेशिया में है, तो क्या इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं डॉक्टर प्रजापति साहब? प्रदीप जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब विदेश जाते थे तो वहां से कुछ ना कुछ देख करके आते थे। जैसे कि पहला एक्सप्रेस वे, भारत का पहला एक्सप्रेस वे उन्होंने ब्रिटेन में देखा, और ब्रिटेन में देखने के बाद भारत के अंदर पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया। उसके बाद 100 नंबर अमेरिका से उन्होंने देखा कि अमेरिका में किस तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। 100 नंबर लेकर के आए। 102 नंबर, 108 नंबर ये भी उन्होंने बाहर से अडॉप्ट किया। वुमेन पावर 1090 1090 उन्होंने बाहर से देखा, और 1090 महिलाओं के संरक्षण देने वाला एक बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर, इतना वीआईपी हेडक्वार्टर पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में हो तो मुझे बता दें। जब उन्होंने हाईटेक देखा कि बहुत ज्यादा हाईटेक होना चाहिए पुलिस को, तो उन्होंने हाईटेक बनाने का प्रयास किया। ऐसा बनाने का बनाया कि 3-3 हेलीकॉप्टर उसकी छत पर उतर सकते। मुझे इतना बता दीजिए, मोदी जी शायद नहीं, 100% ये सच्चाई है, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा देशों की यात्रा की है। लेकिन यात्रा क्यों कर रहे हैं ना, अभी एक बड़ा मैटर चल रहा है, उसमें भी नाम आ रहा है इनका। लेकिन सर एक चीज बताइए, जो भी कहते हैं अभी बस थोड़ा सा और मुझे इतना बताए कि कौन सा नई चीज इन्होंने, जैसे मैंने कई योजना बताई ना अखिलेश यादव की, ये घूम करके आए और घूम करके ये कहा कि मुझे ये चीज वहां की अच्छी लगी, ये चीज एडॉप्ट हुई है। अब्दुल मलिक जी इसका जवाब दे दे कि ये चीज नई उन्होंने एडॉप्ट की भारत के अंदर। सर वो तो साइंस तरक्की कर ही रहा है, साइंस लगातार तरक्की कर रहा है। वो उसे नहीं, ऐसी कोई चीज लेकर के आए हो कि हाँ मैंने ये चीज वहां देखी थी, ये चीज यहाँ पर कर दी जाए, पता नहीं क्यों जाते हैं। सर ये बताएं, योगी आदित्यनाथ जी ये बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की जितनी अच्छी है, आज तक कभी उत्तर प्रदेश की ऐसी नहीं हुई। यहां तक कि गोविंद वल्लभ पंत भी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी इतनी बढ़िया नहीं थी। ऐसा बोला है सर राकेश प्रजापति। मैं आ रहा हूं द्विवेदी साहब आपके पास, मैंने देख लिया आपने उंगली उठाई। सर प्रजापति साहब। मैं राजीव जी मैं क्या बताऊं, मैं ज्यादा इस पर बोलता इसलिए नहीं हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े, सारे तो आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं सर, सब है, लेकिन कानून व्यवस्था के सारे आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, ठीक है ना। और एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहना है, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, कि एनसीआरबी के आंकड़े सारा बयां कर देना है कि किसकी सरकार अच्छी थी, किसकी सरकार बेकार थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सबसे ज्यादा एशिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर अभी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और अमेरिका में 60 to 70% जो आईफोन्स हैं वो उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होते हैं, जो आज की तारीख में अमेरिका में बिक रहे हैं। सैमसंग मोबाइल भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आगे होंगे। और जहां तक डिफेंस कॉरिडोर का सवाल है सर, डिफेंस कॉरिडोर में तो तकरीबन कोई ऐसा असला नहीं है हमारी फौज का, आर्मी का, नेवी का या एयरफोर्स का, जो उत्तर प्रदेश में अभी ना बन रहा हो। तो सर मतलब योगी साहब तो कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी अभी 1.5-2 साल के अंदर अंदर। प्रजापति साहब, धरातल पर क्या हो रहा है राजीव जी, ये जरा एक दिन विजिट करके देख लीजिए। आप एक काम करिए, ऐसी फैक्ट्री का किसी दिन विजिट करके देखिए कि आखिर क्या हो रहा है उसमें। जी सर, ठीक है ना।
जी। ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस इतना द्विवेदी कहूंगा साहब, एक दिन जरा विजिट क्या हो, कहने में इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको द्विवेदी साहब, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए ज्यादा नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं, एक बार उस फैक्ट्री का आप जाकर के ऑन स्पॉट देख लीजिए, तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। संजय द्विवेदी साहब, आज पीयूष गोयल ने कहा पिछले 12 साल के मोदी जी के आप पूरे एनालिसिस देखिए, देश हित में जितने इंपॉर्टेंट निर्णय उन्होंने ले लिए फाइनेंशियल के, उनका कहना कि इनकम टैक्स में 12 लाख का रिलीफ, पहले बार मोदी साहब ने इतने जबरदस्त डिसीजन लेके मिडिल क्लास सेक्टर और सैलरीड क्लास को रिलीफ दे दिया। जीएसटी में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चेंजेस लेके आके पूरे मार्केट को उन्होंने फ्रेंडली बना दिया। गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रकार से एक उछल हो गए, अपस्केल चला गया वो सेल और डिमांड में, तो वो एक डेवलपमेंट हो गया। और जो फ्री एफटीएस है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चाहे यूएस के साथ हो, चाहे यूके के साथ हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ हो, सब ऐतिहासिक निर्णय मोदी साहब ने लिया है और इसमें जबरदस्त तरीके से इस देश का जंप हुआ है। द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी, संजय तो बड़े अच्छे निर्णय सर लिए हैं मोदी जी ने, धन्यवाद मोदी जी को। जीएसटी का जिसका विरोध कर रहे थे वो जीएसटी लागू की उन्होंने, और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो दवाएं हैं, जो हमारी डायबिटीज की दवाएं थी और तमाम चीजें ऐसी थी जिनमें उन्होंने जीएसटी लगा दी। बड़ा महान किया था साहब उन्होंने। और 12 साल बाद उन्हें याद आया कि साहब इन पे जो हमने जीएसटी लगाई है तो शायद हम हटा लें। ऐतिहासिक काम किया सर इन्होंने। तो ऐसा नहीं, मोदी जी ऐतिहासिक 2 करोड़ नौकरी मोदी जी दे रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी इतना तेजी से बोलते थे जिसकी हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ साथ वो भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुला लिया कि भ्रष्टाचार की जांच ही ना हो। अब भ्रष्टाचार की जांच खत्म, जो भ्रष्टाचारी थे देश में सबको उन्होंने अपने यहां बुला लिया। चूंकि 10,000 करोड़ का फंड लेना है, इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड लेना है, पीएम केयर फंड में फंड लेना है, तो ये फंड कौन देगा? ये फंड तो ऐसे ही लोग दे सकते हैं ना जो पूरी पार्टी निकल गए हो। पूरी पार्टी जिसके लिए कहते 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है ये पार्टी, वो पूरी पार्टी उनके पास आ गई। वाह भाई वाह, वेरी गुड। जो विधायक जिनके खिलाफ ये इनके नेता लोग चिल्ला के कहते थे साहब ये भ्रष्टाचारी हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जिनके ऊपर चिल्ला कहते थे, वो पता नहीं कैसे गई पार्टी में। अब वो सुरक्षित है। वो कहते हैं कि साहब रात में बड़ी अच्छी नींद आती जब से हम बीजेपी में आ गए, अच्छी नींद सो रहे। आपने कहा साहब आज भाजपा का बन रहा है। अरे तो भाजपा अपने आप थोड़ा ना बना रही, भाजपा भी जो गद्दार है उनसे समर्थन लेके बना रही है। तो इसमें कौन सी ऐतिहासिक बात हो गई? पिछली बार हमने अपना बनाया था, आज उन्होंने इसीलिए गद्दारी करवा दी हमारे साथ। 50 होके बांट दिया, ईडी से दिखा दिया, पार्टी तोड़वा दी। एनसी पवार जो परिवारवाद वाली पार्टी थी उसको तोड़ा, और परिवारवाद के जयदादा पवार को ही अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। परिवारवाद की नारा, अब परिवार उनके डेथ हो गई, उनकी डेथ होने के बाद उनकी पत्नी को बना दिया। परिवारवाद साहब है ही नहीं, परिवारवाद की बात करते हैं, ये परिवारवाद का विरोध करते हैं। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, अखिलेश यादव परिवारवादी पार्टी है, तेजस्वी परिवारवादी, उद्धव ठाकरे परिवारवादी पार्टी है, इसे हमने साहब तोड़ा था। तो ये कौन से किस इतिहास के संविधान में लिखा हुआ है कि आप जो सिद्धांत अपना रहे हैं उन्हीं सिद्धांतों को आप छोड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए? 2014 में उद्धव ठाकरे जो थे वो परिवारवाद से नहीं आते थे। जब इनको समर्थन लेना था तब परिवारवाद वाले नहीं थे। जब 12 साल ठाकरे ने समर्थन से सरकार बनाई तब परिवारवाद का नारा नहीं था, क्योंकि इनका फायदा होना पाता था। अब अगर पीडीपी से गठबंधन किया तो क्या परिवारवाद की पार्टी नहीं थी? वो जेजेपी में गठबंधन किया, परिवारवाद की पार्टी नहीं है? या बिहार में गठबंधन किए हैं, परिवारवाद की पार्टियां नहीं है? तो परिवारवाद का नारा इतनी तेजी से देते हैं क्यों? 2014 में माननीय मोदी जी ने यह सीख लिया कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस, जो हमको बढ़ चढ़ के मुकाबला कर सकती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज हमारे विपक्ष की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो 2014 में भाजपा के लिए थी, 2004 में
क्योंकि भाजपा ने अडवाणी के बाद किसी को अपना पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था। 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार हमारे आए, 2000 में माननीय मोदी जी बन गए। जनता ने थोड़ा रुख चेंज किया। अगर आज विपक्ष के पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो तो आप निश्चित जान लीजिए जो अगला चुनाव आने वाला है वो कांटे की टक्कर का हो जाएगा और कांग्रेस की भी स्थिति और मजबूत होगी, विपक्ष की स्थिति मजबूत होगी। जब तक हमारे देश में ये देशवासियों को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मोदी से टक्कर कौन करेगा, मनमोहन सिंह से टक्कर करने के लिए मोदी को लोगों ने देखा, पहचाना। भले उनकी जो आज की नीतियां जो हैं वो ना गरीबों के लिए है ना मध्यम वर्गीय के लिए है। उनकी टोटल नीतियां, टोटल सिद्धांत, जैसा मैंने अभी बताया आपसे कि अगर कांग्रेस सरकार 65 साल राज किया तो उन्होंने दिया। और आज मुझे एक चीज बता दीजिए आप कि कौन सी नई चीज जो है वो डेवलप की इन्होंने। राइट, सो वही चीज सर, वही चीज प्रजापति साहब ने पूछी, वही चीज आप पूछ रहे हैं, तो अविरल मलिक साहब से पूछ लेते हैं। मलिक साहब, नई चीज कौन सी लेकर के आए हैं आप, बताइए, कौन सी नई चीज लेकर के आए हैं आप सर? डॉक्टर मलिक जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय नया क्या आया क्या नहीं आया, चारों ओर नया ही नया है। इस देश में जो विकास हो रहा है, विकास की जो एक तरीके से गाथा लिखी जा रही है, चारों ओर नया ही नया है। और जहां तक विषय एक तरीके से डील का जहां तक पर्टिकुलर विषय है तो बिल्कुल स्पष्ट है, इस चीज को बिल्कुल सच। जी बोलिए राकेश जी। बोलिए राकेश प्रजापति जी। मैं नया तो देखिए, नया मैंने कहा ना, नया तो प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसे 100 नंबर पहली बार आई, एक्सप्रेस वे पहली बार आया, 102 नंबर पहली बार आई, 108 नंबर पहली बार आई, 1090 पहली बार आई। ऐसी कोई एक चीज बताइए जो पहली बार चीजें शुरू हुई, ऐसी कोई चीज। वो तो देखो, डेवलप तो प्रकृति का नियम है भाई। ये तो नई जनरेशन आ रही है, 5G, अब 5G चल रहा है, 6G 7G 8G, ये तो आना ही आना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मोबाइल पहली बार आया, अब ऐसी कोई चीज नहीं लाए हो, एक चीज बता दीजिए जिससे कि जनता को भी पता चल जाए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय पहली बार क्या कुछ है, पहली बार बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बार जो आया उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था, अगर पर्टिकुलर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अगर राष्ट्रीय स्तर की आप बात करें, विकास की बात करें, गरीब की बात करें, पिछड़े समाज के विकास की बात करें, गरीब समाज के विकास की बात करें, तो उनके लिए जो भी आवश्यक है और जो भी महत्वपूर्ण है वो निश्चित रूप से लाया जा रहा है। और जहां तक विषय मेक इन इंडिया की हम बात करने वाले लोग हैं, मेक इन इंडिया विश्वास रखने वाले लोग हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक विषय, जिस प्रकार से रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लीगल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से रिफॉर्म्स आते रहेंगे, आते रहे। जी, घूसखोर जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, उत्तर प्रदेश में पहली घटना ऐसी घटी जिसमें कम से कम 12 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। सर, पहली ऐसी घटना घटी, बलात्कार में शामिल व्यक्ति ने परिवार को खत्म करने की चाहत रखी, लेकिन उस पर FIR नहीं हुई। FIR कब होती है? जब हाईकोर्ट कहता है। तो बहन बेटियों की इज्जत इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये है। इसके बाद क्या हुआ, किसानों के आंदोलन चल रहा था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये कानून व्यवस्था अच्छी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, जो इस प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां जहां इनकी सरकार है वहां कोई गलती नहीं है, कोई घटनाएं नहीं घट रही। अगर उद्धव ठाकरे जी सरकार बना ली है तो मस्जिदों से भोपू उतरने पड़ेंगे, उतारे जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा सुशांत सिंह राजपूत के लिए, कि उसके लिए आत्महत्या को लादने के लिए 4-4 महीने पूरे मीडिया सबके, बीजेपी के नेता, तमाम लोग चिल्ला कहेंगे साहब आदित्य ठाकरे इसमें शामिल है, फलाने शामिल है, ढिमाके शामिल है। अगर हम आदित्य दादा पवार की हृदय विदारक देश हुई, अगर उसकी बात भी कर लेते हैं कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए, तो हमने बड़ा बुरा काम किया। FIR तो हुआ है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद भवन में सुरक्षित नहीं है तो मैं सोचता हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अध्यक्ष जी, लोकसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए,
और इस सरकार से चले जाना चाहिए। जो दूसरी सरकार आएगी वो लोकसभा से लेके पूरे देश में एक अच्छी सरकार देगी और लोगों को जो है इन घटनाओं से बचाएगी, कानून व्यवस्था सही होगी, लोग डरेंगे नहीं, लोग भयभीत नहीं होंगे। इतना भय दिखा रहे हैं इस समय ये देश में कि साहब हम सुरक्षित नहीं है। जेड प्लस श्रेणी जिनको मिली हुई है आप वो बोलते सुरक्षित नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, एफआईआर तो लॉन्च किया योगी आदित्यनाथ जी, एफआईआर लॉन्च किया। घूसखोर पंडित एफआईआर जो पिक्चर निकला था, पिक्चर निकलने वाला है, घूसखोर पंडित, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, वह एफआईआर लॉन्च किया है, पूरे फिल्म पे एफआईआर लॉन्च किया है। कुछ कहना चाहोगे इस पे? घूसखोर पंडित। अरे इसमें हिंदू वर्सेस अब हिंदू लड़वा दिए जा रहे हैं इस देश में। इस देश में उत्तर प्रदेश में तो यूजीसी लाके पहले ही हिंदू मुस्लिम करते थे, अब तो ये हिंदू हिंदू लड़वा दे रहे ना। तो इनकी राजनीति इसी से चलती है, इसी पे खत्म होती है। कितनी बड़ी चीज है ये कि आज हिंदू से हिंदू लड़वाया जा रहा है इस देश में। तो इससे बड़ी घटिया पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ किसी देश में, किसी प्रदेश में नहीं हो सकती है। जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम हृदय से स्वागत करेंगे कि जिन्होंने संज्ञान लिया और उस पर उन्होंने रोक लगाई। तो ऐसी सरकारें शायद इस देश के लिए, सुरक्षित देश के लिए अच्छी नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जो देश के लोगों को लड़वाने का काम करे, देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करे और देश की शांति व्यवस्था भंग करने का काम करे, मैं ऐसी सरकारों को नहीं समझता। Right, so let me go to Professor Prajapati. Prajapati साहब, one small thing sir, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने कोई नई चीज नहीं लेकर के आए, मोदी सरकार कोई नई चीज नहीं लेकर के आई। अगर ऐसी बात है तो ट्रंप मोदी साहब की जो डील हुई, इट्स अ ट्रंप मोदी डील एक्चुअली, इंडिया यूएस डील जो है, इनफैक्ट क्योंकि ट्रंप साहब ने उसका श्रेय दिया ही है इनको, मोदी साहब को ही। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमेरिका में जितने एनालिस्ट हैं वो इसको मोदी की जीत क्यों बता रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मोदी साहब झुक गए, Modi Saab is bowed in front of Mr. Trump. So why are American analysts, including the Wall Street Journal, why are they describing this as a victory, a triumph for Mr. Modi? प्रजापति साहब। नहीं, लेकिन राजीव जी मैं तो यही सुन रहा हूँ कि भाई अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका जीत गया, ट्रम्प जीत गया। I'm talking about the media, sir. I'm talking about the American media. मैं अमेरिकन मीडिया की बात कर रहा हूँ। जी हाँ। मीडिया तो ऐसा ना, मीडिया सुनिए सर मैं अमेरिकन मीडिया की बात कर रहा हूं, इंडियन मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एबीसी न्यूज की, सीबीएस न्यूज की, सीएनएन की, और यहां तक के फॉक्स न्यूज जो कि टोटली ट्रंप के साथ है, उन्होंने भी कहा दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर मिस्टर मोदी। अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड सर। नहीं, लेकिन भाई हो सकता है मैंने नहीं सुना उसमें, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जितना भी मुझे पता है, मैं जहां तक सुन रहा हूँ, जहां सोशल मीडिया के माध्यम, क्योंकि अब मीडिया को हम मीडिया नहीं मानते, ठीक है ना, हम तो सोशल मीडिया को मीडिया मानते हैं। असली मीडिया है सोशल मीडिया, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से यही आ रहा है कि ट्रंप की जीत हुई है और मोदी जी की हार हुई है। ये अमेरिकन के द्वारा भी किया जा रहा है, इंडिया में भी किया जा रहा है। सर अमेरिकन पॉडकास्टर्स जो मेरे पास हैं, उनमें सबने ये कहा है द वर्ल्ड चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड आफ्टर मिस्टर मोदी सेड नो टू मिस्टर ट्रंप। दैट्स व्हाट अमेरिकन पॉडकास्टर्स आर सेइंग। दैट इज आल्सो सोशल मीडिया सर, एंड people like Jeffrey Sachs, one of the best known economists in the world, he has said this is a huge victory for India. Sir, Prajapati sir, now नहीं, मैं तो देखो, मैं देखिए राजीव जी बोलिए सर। मैं तो मुझे तो प्रैक्टिकली बता दीजिए कैसे इंडिया की जीत है। भाई देखिए, अमेरिका कई चीजों में नंबर 1 है, मक्का उत्पादन में नंबर 1, सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1, कपास उत्पादन में नंबर 1, बादाम उत्पादन में नंबर 1, अन्य कई ड्राई फ्रूट्स में नंबर 1, संतरा उत्पादन में नंबर 1, दूध डेयरी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी में नंबर 1 है, सभी में नंबर 1 है जी। तो आप बताइए ये विक्ट्री किसकी है?
इन सब में नंबर 1 है, तो ये सारे प्रोडक्ट भारत में आएंगे। जब ये भारत में आएंगे और ये 0% टैरिफ लग करके आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, सर 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 बोलिए सर, मुझे बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है आप इस बात को कैसे कह रहे हैं कि बिकती है, क्योंकि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। इसलिए कि एक एक होती है रिलायबिलिटी और एक होती है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। आप मुझे बता दीजिए, अमेरिका की चीजों की रिलायबिलिटी ज्यादा है, इंडिया की बनी हुई चीजों की रिलायबिलिटी ज्यादा है? मेरे ख्याल से अमेरिका की चीजें मोर देन कई कई गुना ज्यादा रिलायबल है इंडिया की चीजों से। अब आप बताइए, जब उन्हें बगैर टैरिफ के इंडिया अमेरिका की चीज उतने रुपए में मिल रही होगी, चाइना की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर, नॉट जी, चाइना, जी, नॉट you're चाइना। talking about USA, चाइना yes. की चीजों पर, चाइना की चीज पर विश्वास नहीं करता है आदमी, ठीक है ना। बट अमेरिका की चीजों पर आंख मूंझ करके विश्वास कर लेगा। अगर ये बता दिया ना ये अमेरिका का प्रोडक्शन है, तो सोचेगा भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वहां की रिलायबिलिटी कहीं गुनी ज्यादा है। और जब वो चीजें इंडिया में सस्ती मिल रही होंगी, इंडिया की बनी हुई चीज, प्रोडक्टिविटी वाली चीज 105 रुपए में मिलेगी और बाकी बनी हुई चीज 100 रुपए में मिलेगी, तो कौन सी चीज खरीदना पसंद करेगा आदमी? अमेरिका की चीज पर खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि वो रिलायबल ज्यादा होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बाकी मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। Right, so let me go to Dr. Aviral Malik. Dr. Aviral Malik, I have a list over here, very small list. अभी तक क्या है कि पूरे डिटेल जो हैं इस डील की आई नहीं है, जितने आज आए हैं वो तो मालूम पड़ गए हैं, लेकिन उसमें सर ये देखिए, फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्रोवाइड्स 40% of all generic medicines to India. 40% of all medicines sold in India sold in USA are made in India. 40%. Electronics. This is one of the fastest growing sectors and we export about $6.5 billion worth of electronics to the USA. Gems and jewelry, उसके ऊपर 0% tariff है सर in the USA. Engineering goods, including industrial machinery, auto components and articles of iron and steel, textiles and apparel, petroleum products, including refined oil, including the stuff that we bought from Russia. That also, by the way, we have sold to the Americans. सर मेरी एक छोटी सी चीज है, फैक्ट इज 50% से टैरिफ नीचे आया 18% पे। दूसरी चीज ये कहा जा रहा है, जो अभी प्रोफेसर प्रजापति ने कहा ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सर मेरी ओपिनियन में ये एक अवसर है बहुत हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए कि आप भी कंपीट करें दुनिया में, आप भी कंपटीशन में आए और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं विच आर बेटर देन द यूएसए, अदरवाइज सफर। देखिए साहब, टुडे द वर्ल्ड इज यूनाइटेड, द वर्ल्ड इज अ कॉमन मार्केट। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस में इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, जैसे अब electronic chips, silicon chips, they are being made in India, and very shortly by 2026-27 we'll have a great industry in AI and quantum computing. मेरा ये कहना है कि कई जगह पे हिंदुस्तानी गुड्स का जवाब नहीं है सर। बाकी सब चीजों में भी आप वही बनाएं, क्यों नहीं बना रहे हो? Like the Tatas for example, Tatas की जो मैन्युफैक्चरिंग है, Tata manufactured trucks are sold all over the world. Bajaj Auto manufactured motorcycles are sold all over Africa, all over Latin America. इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स भी बनाएं। आप बताएं अविरल मलिक साहब। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। और रही बात एक तरीके से भारत को प्रमोट करने की, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की, तो मेक इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण हमारे द्वारा चलाया गया। और रही बात एक तरीके से मार्केट की, इंडियन मार्केट की, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में जो इंडियन गुड्स है, भारत का सामान है, भारत में जो निर्मित सामान है, वो किस प्रकार से प्रमोट हो और विदेशों में प्रमोट हो, इस पर हमारी सरकार बहुत ध्यान रख रही है, ख्याल रख रही है। और जो आपका सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जमीनी स्तर पे किस प्रकार से परिवर्तन आए, किस तरीके से जो मेक इन इंडिया हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया, ये जमीनी स्तर तक जाए, इस पर हम पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और जहां तक विषय हमारा सबका संकल्प वो एक ही है, हमारा मूल मंत्र है, नारा है जो पूर्ण रूप से हम देते हैं, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और उसके साथ साथ स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की बात हम करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। Well, gentlemen, thank you very much. That has been a most enlightening discussion. All points very clear. But let me tell you one thing. Let's be very clear on one thing.
जो अविरल मलिक साहब, एक चीज है, संजय द्विवेदी साहब और प्रोफेसर प्रजापति ने जो पॉइंट्स रेज किए हैं विद रिगार्ड टू दिस डील, वो हर भारतीय के मन में हैं, उनको आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा सर, लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि हर एक को ये डर लग रहा है, अरे यार अगर अमेरिकी प्रोडक्ट यहां पर अगर आ जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो हमारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, यू विल हैव टू क्लैरिफाई, लेट्स बी वेरी क्लियर। जी प्रजापति साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर बिफोर वी गो, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं Right. No, no. Thank you, gentlemen. Thank you very Thank you much. so It's been a much. great pleasure talking to all three of you. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Jai Shri Ram. Mahadev. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Wonderful. But the fact is, Pradeep ji, this is also a huge window of opportunity. It's a huge opportunity. In fact, he has quantified, Piyush Goyal had quantified $30 trillion US, 30 trillion US worth exports is awaiting the people who can do it. We have People who opened can up do, the market. and you've got to be able to do it. My point is, this is not a protected market world anymore. You can't live in your small little cocoon where you'll be protected by the license raj. अब आपको compete करना पड़ेगा सारी दुनिया के साथ, सारी दुनिया के प्रोडक्ट्स के साथ. सर, competition leads to quality. और अगर आप नहीं compete कर सकते, so suffer. सीधी सादी बात है सर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. You can't do anything. अगले दिन आपके पास, हमारे पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो ऐसे इन्वेंशंस बनाए, ऐसी चीजें बनाए जो सारी दुनिया जो है आकर के उसके पीछे लगे कि भाई हमें ये चाहिए. Why can't we do it? If our kids can go to the United States of America, can go to Europe and become one of the best inventors in the world, why can't they do it here? Exactly. यहां पर आपको, आप उनको एटमॉस्फेयर वैसा का वैसा दीजिए, वरना सफर, रिमेन अ थर्ड वर्ल्ड नेशन. सीधी सादी बात है सर उसमें. It's as simple as that. Ultimately, you have to compete. To be able to compete with the rest of the world, you have to fight for your place. And if you don't fight, you die. That's what's going to happen. Markets are open, perform or perish. Perform or perish. That's it. और ये भी आपको बता दूं मैं कि जहां तक कि अभी इंडिया और यूएसए के बीच में जो मैच चल रहा है, यूएसए ने जो हालत खराब कर रखी है इंडिया की, हाय हाय हाय, मुझे ऐसा लग रहा है, I think that will be one of the reasons why Pakistan will change their mind. They'll actually play India. मतलब जो अभी हालत हो रही है हिंदुस्तान की, अकेला सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, बाकी सब कोई, मतलब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं. That's what is happening. Which is, well, but let's see how the Americans perform. But most of them are Indians, by the way. They're all Yes, they are. American players of Indian origin. फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. Please subscribe to the channel. Pradeep ji. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now is the fastest growing channel of the nation. And the only channel which brings you the real truth. The real people's channel. याद रख लीजिए, यहाँ पर जो है हम लोग आपको एक एक चीज दिखाने की कोशिश करते हैं. एक एक चीज, हर पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. I personally believe that it's a great deal. India was हिंदुस्तान और अमेरिका की जो डील है, I personally believe it's a great deal because considering the changed circumstances, Pradeep ji, Trump has come. सीधी सादी बात है. ट्रंप साहब को इस तरीके से 50% से 18% पर लाना, it is a magnificent achievement. आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए. चाइना is still at 39-40%. उसके तो कम नहीं हुए, वहीं का वहीं है. वियतनाम 35%. अब I'm sorry, Switzerland 35%. मतलब That's why the BJP said all across our neighborhood, you look and we have got the best deal. And it's all thanks to the fact that Modi refused to budge. And even now, as far as Russian oil is concerned, by the way, it's still not clear whether we're going to buy Russian oil or not. We still might, one never knows. In the meantime, congratulations to Ritu Tavade ji for becoming the first BJP mayor of Mumbai. मुंबई की सबसे पहली भारतीय जनता पार्टी की महापौर कौन बन रही हैं? रितु तावड़े जी from Ghatkopar. Fantastic. Absolutely amazing and fantastic. And that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. और चलते चलते एक और चीज बता दें आपको कि there is going to be the Prime Minister has gone to Malaysia, and मलेशिया के साथ जो हमारा पाम ऑयल इंपोर्ट हुआ करता था, because of Malaysia's support to Zakir Naik and to Pakistan, we had stopped it. The new deal perhaps might include a few things.
there's every possibility that our dear friend Dr. Zakir Naik might actually be brought back to India and might face trial over here. It might happen. One never knows. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से, प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।